I am Dr. Pawan Kumar Khedkar. I am into Indian Information Service through UPSC Civil Service Examination of 2021 exam. I got All India rank of 60 through reserve list, and I would like to share my journey with you. So today's session will be first we'll start with sharing with my journey in a little bit. Then we'll categorize strategies. Like basically, we'll categorize strategies into two sessions. One is strategy for studying, and strategy for the exam. So without further ado, let me start. So uh, if we speak about my background, I'm from medical background. I did my MBBS from Grant Medical College, and after that, I did my postgraduate diploma in hospital administration and also in emergency medicine. So basically, I was working as a medical officer with Municipal Corporation of Greater Mumbai. And during COVID-19, I was nodal person for my hospital. So I saw the situation, and earlier I used to think that as a doctor, you can contribute more to the society. But when I saw the situation and how the administration actually worked beyond limit, stretching their limits, and it created miracles, especially during COVID-19 in Mumbai, where the population is huge and there are lots of slum. So it was very much difficult situation to handle, but administration worked really well, and that really got inspired me to write civil services. So let's talk about strategies. So when we are talking about strategies, there are two subheadings I would like to cover. First is strategy for studying, and the second would be strategy for exam. Because as much as it is important to study, it is also important to strategize as per the need of examination. So if we are thinking about study, so some is asking out of syllabus prelims में questions पूछे जाते हैं क्या? I am writing down your queries. I'll get back to you once I finish with the strategies thing. So my strategy would be first thing, your guiding light should be syllabus of UPSC. Download a copy from UPSC official website and stick to the syllabus. Try to read the syllabus. Prelim syllabus is very much vague. They've given st- important events of national and international importance and so on and so forth. It is very vague, but the main syllabus is very much organized as per the papers and as per the themes and topics. So you must learn the syllabus first, and then PYQs. The preparation should start and end with PYQs, because without PYQs, it will be a directionless study, because everybody says that anything under the sun can be asked during UPS examination. But if we analyze the previous year questions, and now, when we say analyzing the questions, we analyze on two themes. One is what is the theme of question on which the questions are there. So, if you analyze this on this pattern, you will see that there are many themes which get on repeating. For example, if you consider GS3, the agriculture theme, micro irrigation, the questions are repeated time and again. So on different themes you must identify, so which are the themes which they are focusing continuously, what are the themes they are recurrent in news, that you must focus on, and that you'll get an idea from the previous year questions. Another thing is what is the type of question, whether they are asking for analyzing, critically analyze, explain. So on these two parameters you should always analyze the previous year questions. This is about mains. Similarly, if we talk about prelims PYQs, you will see that many a times patterns have been repeated. For example, they'll always give that this program is run by following ministries, or find out the wrong thing, and they'll always mismatch the ministry which is implementing the program. So there you will have an idea that okay,
So this is the trap question. This is where they are trapping us. So you need to be aware of those traps. Another thing is toppers copies. So your preparation for mains, it is very much important that you analyze the toppers copies. For example, essays. If you see Vikram Gariwal sir's essay, or those who are topped time and again, you should analyze those copies. So how they have linked the topic and how they have linked the answer. Also, what are the okay analyzing the syllabus. Okay, I'll get to that also. So whenever you're talking about toppers copy, it is freely available resource on Vision's website, or you can just Google it out and see what are the toppers copy. So when you are seeing the toppers copy, you must also analyze what are the questions, and they are you can't find out the direct answers from the books or from any other source, but how they have tackled the question. There are few questions which you won't be able to get direct answers during your preparation. So this is the area where you will get fruitful insights. Second thing from the toppers copy you can analyze is the presentation, because many a times if they have a very few content, they will present in such a way that they'll fill the paper and also point out the important points, because many a times during mains you will find that it is difficult to complete the paper. So you can use these tricks like Venn diagram and like Venn diagram or pie chart and all, so that you will get an idea of how to tackle those questions. Also, another thing which you can learn from toposcopy is first how they are writing introduction, because in introduction they'll relate it with current events. They'll come up with some startling fact. They'll come up with certain data which, and the data when you are mention it that it should be linked with the question what they are asked. It should be relevant to the question they are asked, and it should be proving the fact. Whatever points you are going to mention during your further answering, those answers and those facts which you are mentioning, they should be collaborating. They should not mismatch. Another important source is your newspaper. So when I'm saying newspaper, many a times people come and say that okay ये question directly exam the Hindu से आया है, the Indian Express से ये page से आया है. But I would say that don't think in terms of only prelims point of view, because it may happen that even if you read it like 1 year back, you may not remember the same thing during your prelims. So focus it in such a way that the newspapers will be more and more helpful to you during your answer writing to the mains. Also for your interview in forming opinion that is based on certain expertise opinions, certain facts, certain you will have evidence based answer or opinion for that matter. So when you are newspaper, there are certain things which I would like to recommend is Indian Express Explained series. I know everyone says this, but this is very important because it will give an insight of various themes or topics which are going on, and that will definitely help you during your mains answers. Again, there is one data point in Hindu which is also very good. For example, there is a cost of thali which is almost doubled since the last few years. So these data facts you can quote into your GS3 answers, which will be very value added. Another thing is FAQ from the Hindu. That is also very good. Generally, it covers your one topic. So one main topic, a small topic will be covered during this FAQ. So point out this, and generally they will write a summary of it. So if you can copy it or if you can make a compilation of it for revision, it will be good. Again, one source I would like to recommend is Mint. On the first page and second page, there are generally explainers from the economics terms. That will be very, in a lucid language, they explain it. And from various point of views, they analyze it. So if you can add it in your preparation, that will be good. So uh, uh, if we consider the takeaways from this study things or the newspapers, we have to note down
certain important facts which you'll find it there and there itself. You won't find it anywhere else. Certain quotes, certain phrases which are used, so that you can maintain a separate diary. And when you are maintaining separate diary, just is in front of that quote or in front of that fact, always mention and write down that where I can utilize this during my mains, whether I can utilize it in GS3 answer, whereas I can utilize it in ethics answers. So that is very much important, because just mentioning the facts and sources is not going to help until and unless you have a clear cut mindset that okay, I am going to use it in GS2, I'm going to use it in GS3. This practice will have to do deliberately. So again, books. When I'm coming to books, keep your resources minimum, because minimum resources and maximizing the revision will help you analyze the topic better, help you remember better, help you answer better, because you'll have a different perspective, in-depth perspective, and also you'll be able to रीड इन बिटवीन द लाइन्स. सो ये है कि आपको बुक्स जो मिनिमम रखने हैं. ऐसा नहीं है कि नया बुक आया है तो उसके पीछे भागो. जस्ट मेक श्योर दैट योर रिसोर्सेस आर मिनिमम and but revisions are maximum. So many times aspirants ask is NCRTs, whether NCRT should be read or not. I personally believe that NCRTs do help a lot, especially history, geography, because I think certain questions can be directly answered from there, and even polity for that matter. Certain questions, certain MCQs, and certain mains answers also. You will get a lot of further material for that in NCRTs. So if you have time, I must suggest NCRTs are must. And when you are coming to sources, obviously everybody refers standard books. For polity, Lakshmikant. For modern history, Rajiv Iyer sir's book. For geography, NCRT. I also read NCRT, some topics from GC Leong. For economics, I preferred Mrunal sir's notes. And you can actually believe in, actually you can follow Vision 365 or Mains 365, because it covers in-depth topics which are very much frequently in news, and along with that PYQ, it will be a very in-depth material. For internal security also, you can collect the booklet of Mains 365, and you can focus on that. And basically, if you do the previous year questions from Rao's Compass or any other compilation for that matter, it will be very much useful, because themes get repeated, especially internal security, and even for that matter environment, some questions get repeated. Economics, certain themes do often get repeated, and if you analyze the previous year questions, you will be able to understand that certain themes have been repeated time and again. So this we should not miss, and we should try to formulate your own answers on those themes. So, and one more resource I would like to add is online resources. So in online resources, even if you have to stay away from social media for a longer period of time, you should avoid using social media for a longer period of time. In a day, you can maximum use for like 30 minutes or 15 minutes to 30 minutes. You can utilize it to stay connected with the world. But certain YouTube channels which are free sources, I can suggest is Bookstava. It is very good for modern history. I personally listen to it twice or thrice. It will be in a very lucid form and very, I mean, in a very creative way. They have covered modern history. It is a must visit channel for modern history. Another thing is, if you have some free resources on Telegram, you can utilize it. And YouTube, you can utilize certain channels where there are free resources. For example, when I was working actually, so I used to not get much of a time to go through newspapers. So I used to cover daily news analysis, Hindi news analysis from two different YouTube channels. One was Byju's, and Byju's, there used to be daily Hindu news analysis, and another was Shankar IAS. So when I, over a period of time, I realized that there are two different. They both of them they cover different themes.
from one day's topic. So that helped me cover maximum of resources to current affairs. So this was for the study material, and people do ask how many hours you must study. See, it is depending upon your interest, your available resources, and your grasping capacity. For UPSC, going Delhi is necessary or not? I personally think it is not necessary to go to Delhi, or for that matter any other place for preparing, because nowadays you got plenty of resources online as well. So yeah, I mean, if you have resources, you can go. If it is not possible, then it's absolutely fine. Even I did not go to Delhi for the preparation. One, in fact, uh, in my preparation, I would say I did preparation in isolation as I was working professional. So, but yeah, a little bit of mentorship does help as a guiding light. And for optional preparation, even there are many online resources available. So I don't think it is absolutely necessary. If it's possible, you can go. If it's not possible, you can avoid going. Book list I have already covered, and analyzing the syllabus. So one suggestions I can give is, when you are taking syllabus from UPSC website, what you can do is, on every topic there are topics and there are themes which that are mentioned there. So you can actually try and Google it out on the website, or you can, for that matter, you can use ChatGPT or Perplexity AI or Copilot. These AI tools you can use freely, and you can try to generate answers like 250 and to 300 words, pointers on that. For example, if I'm saying agriculture, agri marketing, so if I put the agri marketing, then you can give the command or prompt that uh, what is agri marketing, what are the present issues, what are the present challenges in it, what are the government efforts to overcome it, and what is the way forward. So in that format, you will have almost ready-made notes on entire syllabus. If you can do that, it is well and good. I could not do it, but it is well and good if you can do it, because the maximum word limit for you to answer is 250 words in GS. So if you are covering the topic as such, and if you are having the ready-made notes of it, obviously you are preparing it on your own, so you will have a better understanding of it. स्टडी में कंसिस्ट प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या? या डेफिनेटली प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कैसे करना चाहिए? आई ऑलरेडी आंसर दैट. ऑन टू पैरामीटर्स यू शुड आंसर इट. One is theme, which themes are getting repeated, and what is the pattern of question. In prelims also, what is the pattern of question, what are the themes they are recurring. For example, COP 26 है, तो what is the theme of it, what are the India's contribution to it, what is the issues of it, and way forward है, बाकी कौन कौन से initiatives उसमें लिए गए हैं. So these are the themes which keep on repeating. So yes, questions do repeat. आउट ऑफ सिलेबस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? सी, बिकॉज द क्वेश्चंस और द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स इज नॉट वेरी मच ग्रैन्युलर, इट इज़ वेरी मच वेग एज सच. ब्रॉड पॉइंटर्स दिए गए हैं, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर इट. सो out of syllabus questions, I wouldn't say out of syllabus, but I would say difficulty level changes. And when you analyze it, if you are analyzing the cutoff and if you are analyzing the questions, you should always try to catch the low hanging fruits. बहुत easy questions होते हैं. So हमें ये चीज़ try करनी चाहिए prelims में specifically, कि all those questions that will be correctly marked by the competitors, वो हमारे करेक्ट ही मार्क होने चाहिए. इजी क्वेश्चंस हमारे गलत नहीं होने चाहिए. और अगर प्रीलिम्स की मैं बात करूं, तो उसमें देर आर टू एरियाज विच आई वुड लाइक टू फोकस ऑन, इज इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी. ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा आ जाते हैं, एंड सेकंड थिंग इज दे आर मोस्टली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. सो आपके कंसेप्ट अगर अच्छे हैं, तो यू कैन
इजीली स्कोर मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। और उसमें थीम्स काफ़ी बार रिपीट होती है, जैसे ब्रॉड मनी, नैरो मनी, वो कैसे ये करना है, देन बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कि उनके ऑपरेशंस डिफरेंट क्या होते हैं, उस पर थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो थीम्स डू गेट रिपीटेड, क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा रिपीट हो जाता है। तो यस, ये एनालाइज ऐसे करते हैं करना है। और मेंस में तो मैंने जैसे बोला, थीम्स आइडेंटिफाई करो एंड पैटर्न आइडेंटिफाई करो बस। uh, तो ये हो गया रिसोर्सेज के बारे में एंड स्ट्रेटजी फॉर स्टडी। Again, someone might say number of hours of study. Number of hours भी डिपेंड करता है, जैसे कोई वर्किंग है, कोई वर्किंग नहीं है, तो इस पे भी बहुत सारा डिपेंड करता है। एंड हाउ मच योर एक्चुअली योर आउटपुट इज, दैट इज मैटर। सो इन एडमिनिस्ट्रेशन वी ऑलवेज से इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आउटलेस ट्रांसफॉर्म्स इनटू आउटकम्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वट एवर outcome is there, it does not merely depend on number of hours you are putting in, but quality of study is important. आप उसमें कितना रिटेन कर पा रहे हैं और रिप्रोड्यूस कितना कर पा रहे हैं, दैट इज मोर ऑफ कंसर्न दैन जस्ट merely नंबर ऑफ आवर्स। बट जनरली है 2 आवर्स के बाद छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, एंड ब्रेक के दौरान डोंट डू कोई ऐसा विगरस काम मत करिए। ओके, आईआईएस का वर्क क्या होता है? ओके, सी एज यू नो, द आईआईएस इज इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इट्स अ ग्रुप ए सर्विस, जैसे ऑल सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, ये भी एक पार्ट है जिसका रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज से होता है। आईएएस का जो कोर वर्क है, दैट इज रिलेटेड टू media relations and publicity work of the government of India and all constitutional bodies and स्टैचूटरी बॉडीज जितने भी होते हैं। बेसिकली 3 हेडिंग्स के अंडर आईएएस ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं। वन इज योर पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो हम डे इन डे आउट पढ़ते हैं। देन वी हैव एआईआर एंड डीडी न्यूज़, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, एजेंडा सेटिंग, ये सब भी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर्स देखते हैं। एंड थर्ड इज सीबीसी, जो गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट होता है, पेड एडवर्टाइजमेंट बेसिकली। तो ये उसका ओवरसाइटिंग और उसका अप्रूवल वगैरह जो है वो इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर्स करते हैं। Apart from that, all the official spokespersons of the ministry are from Indian Information Service. Then you have promotion is first you are posted as assistant director. After 4 to 5 years, you are posted as deputy director, and then you have joint director level, then director, and then as additional director general and director general, and the principal is principal director general post. So ये उसका हायरार्की होता है। प्लान बी कब से रखना चाहिए सर? ओके, सो सी basically we must accept that despite of our hard efforts, number of hours, number of years we put in, it is not predictable, because it is UPSC, Unpredictable Service Commission, they call it as. Because apart from your hard work, your consistency, a bit of luck also matters. कि ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट हुए हैं वो 30 मार्क का है और जो नहीं हुए हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क। ये है कि during the day, during your exam, what you do, what you don't do, that is also matters, and sometimes luck also matters. सो प्लान भी हमेशा रेडी रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बट व्हाट आई बिलीव इज एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स, फॉर द फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स यू शुड वर्क वेरी सिंसियरली टुवर्ड्स इट। मतलब सिंसियरली ही करना है, बिकॉज मेनी टाइम्स वी थिंक यार ये अटेम्प्ट नहीं, अगले अटेम्प्ट में देते हैं। नो, एवरी अटेम्प्ट शुड बी, यू शुड वर्क इट एज इट इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट से लेके आपको यही कोशिश करनी है कि यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। सो एटलीस्ट फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स यू शुड गिव इट वेरी सिंसियरली एंड वेरी डेडिकेटेडली, उसी में आप फोकस करिए। इफ आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स यू थिंक कि मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है या फिर ये हो रहा है, तो you can side by side think of plan B. What 3 things need to do daily and 3 things not to at all? I have 2 years, kindly guide. Okay.
So three things which I would like to suggest is, first thing is you maintain a daily goal or daily worksheet of yours कि आज मुझे इतना पढ़ना है. You maintain a weekly worksheet and you make a monthly plan. So आप ये तीन पैरामीटर्स पे एक तो आपको करना है. और आप अगर टारगेट सेट करते हैं that I have to read 100 pages a day, you must try to get it over there. ठीक है, ये तो हो गया आपका प्लानिंग हमेशा होना चाहिए. सेकंड थिंग आई वुड सजेस्ट इज मेंटेन कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज मोर एंड आई वुड से इम्पॉर्टेंट दैन नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इन, बिकॉज अगर कंसिस्टेंसी है तो एक लिंक हो जाता है एंड यू विल स्टार्ट लाइकिंग द प्रिपरेशन. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट इज मेंटेन हॉबी एटलीस्ट. और हॉबी है थोड़ा सा, if you have any hobby in sports or a hobby in guitar or music, anything, you pursue your hobby for about 15 to 30 minutes. ये इससे एक होगा कि आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाओगे, बिकॉज द प्रिपरेशन इज वेरी लेंदी. ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम दिया, एक स्टेज हो गया, फिर आई एम वेरी श्योर ऑफ सेकेंड, फिर आप सेकेंड थर्ड स्टेप में आ जाओगे. कभी बार इंटरव्यू के बाद में भी फिर से प्रीलिम से स्टार्ट करना होता है. तो दैट ये जो फ्रस्ट्रेशन आती है तो वो नहीं आएगी. तो ये तीन थिंग्स आपको करनी है. थिंग्स यू शुड अवॉइड इज, फर्स्ट थिंग आई वुड से इज अवॉइड नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थिंग्स. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार क्या है, तू तो कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. तो अवॉइड नेगेटिव पीपल, अवॉइड नेगेटिव थिंग्स कि यूपीएससी में तो ऐसा होता है. हमारे आजू बाजू बहुत सारी नेगेटिविटी चलती है, यहाँ पे तो फ्रॉड होता है, ये होता है. Always avoid negative people because they will drain your energy like anything. जितना पॉजिटिव चीज़ों से आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो नेगेटिव चीज़ों से आपको डीमोटिवेशन बिल्कुल बहुत जल्दी फील होता है. तो अवॉइड नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव पीपल. सेकेंड थिंग इज अवॉइड एक्सेसिव एक्सपोजर टू सोशल मीडिया. ठीक है, आपको इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, चलाओ. इट्स नॉट कि कम्प्लीटली आइसोलेट होना है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि वो फिर रिपरकशन उसके बहुत अलग तरीके से होते हैं. फिर हम बोरियत में इतना चले जाते हैं, फिर विल फाइंड आउट ये कि भाई मुझसे अभी नहीं हो रहा, मैं फिर 1-2 दिन आराम ही करता हूँ. ये नहीं होना चाहिए. मेंटेन कंसिस्टेंसी. अगर आप 4 आवर्स का मेरा डेडिकेशन है तो वो 4 आवर्स में मुझे स्टडी ही करना है, तो ये रखिए. और थर्ड थिंग आई वुड से अवॉइड इज एनी मतलब गोइंग बिहाइंड रिसोर्सेज. ये अवॉइड करिए आप. जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, उसे ही ध्यान में रखते हुए उसको मल्टीपल रिविजन्स करिए. क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है ना कि मार्केट में ये चीज़ नहीं है, ये नया बुक आया है, इसका ये है, तो वो अवॉइड करना है. आई थिंक समवन आस्क्ड मी विच इज़ योर मीडियम. आई वॉज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, but to tell you frankly, I am from Maharashtra. I did my schooling from vernacular medium. So but my vernacular medium did not come in any way of preparation. प्रिपरेशन कोई भी मीडियम में कर सकते हैं, बट जनरली इंग्लिश मीडियम में इसके लिए ज़्यादा ये करते हैं बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेस. तो ये एक थोड़ा प्लस पॉइंट है इंग्लिश मीडियम के लिए. बाकी आप कर तो किसी भी मीडियम से कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू. सेकंड थिंग आई वुड, अब ये तो मेरे रिसोर्सेस के वजह से ये हो गया स्टडी के लिए. और few things which I think I should have done and I could not do is, one thing I already mentioned कि आप सिलेबस को एनालाइज करके, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, डेली न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन. आई वुड रादर से डेली न्यूज़पेपर. अगर आपने पहले सुना होगा तो डेली न्यूज़पेपर फॉर दिस 3 थिंग्स एटलीस्ट. एक तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन करिए, कोट्स, फ्रेजेस हो गया. उसमें कुछ एनेक्डोट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल few time like few months back or few years back there was article ki burning of constitution copy somewhere down the south. But in that article it was mentioned that it is not the first time it is happening. It happened in 1970s also. Also the tussle between judiciary and legislative, it is not the first time. It happened way back in 70s when some UP assembly had a tussle with the high court. They have different perspective on particular issue. So ये चीज़ें आपको मंथली मैगजीन में शायद से ना मिले, तो आप डेली न्यूज़पेपर इसके लिए पढ़ सकते हैं.
मंथली मैगजीन के बजाय आप पीटी 365 या मेंस 365 से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जाता है। बट जनरली आई वुड सजेस्ट कि मेंस 365 1 ईयर का ना कवर करके 2 ईयर्स का आप कवर करिए, सो दैट वुड बी मच बेटर। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कुछ थीम्स लास्ट ईयर में देवर इन न्यूज़ और देवर प्रोमिनेंट, तो वो ये साल में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप अगर मंथली कर रहे हैं या फिर पीटी 365 या मेंस 365 पे निर्भर हो रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट 2 ईयर्स का आप कर लीजिए। और ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू कैन यूज फ्री एआई टूल्स फॉर योर प्रिपरेशन। जैसे हो गया चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी एआई, तो उसमें आप सिलेबस से रिलेटेड कुछ चीज़ें गूगल कर सकते हैं, या फिर ये यूज़ करना है। ओके, रिजर्व लिस्ट कैसे वर्क करती है? सी जनरली व्हाट हैपेंस इज यूपीएससी में एडवर्टाइजमेंट के टाइम there are certain seats which are announced. For example, in my UPSC 2021, least number of seats were there, 749. But when the first list came, there were only 687, 660 or 670 candidates results were announced, list were announced. So ये इसके लिए होता है कि those candidates का those who are from say open category, ओबीसी कैटेगरी और अदर कैटेगरीज, तो जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स दे हैव इनफ मार्क्स और दे हैव नॉट यूज्ड रिजर्वेशन फॉर गेटिंग सीट, तो दे कैन गेट द सीट थ्रू ओपन। सो दैट इज़ वाई दे पुट सम सीट्स रिजर्व, और उसका सेकेंड टाइम में जब रिजर्व लिस्ट अनाउंस करते हैं दैट टाइम दे गेट अलाउ, दे गेट इनटू इनकॉर्पोरेटेड इनटू लिस्ट, एंड बाद में उनका सर्विस एलोकेशन होता है। So, what is minimum time duration required to fully prepare for UPSC exam? See, I would say that minimum आपको 1 year duration is required. Basically, there is no fixed answer to this, that what is the minimum duration or maximum duration. But I would say that everybody should point out, or everybody should focus that I should get into the first attempt itself, because फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास जो एनर्जी होती है, जो इंथुजियाज्म होता है, वो धीरे धीरे फेड ऑफ होने जाता है। कॉल लेटर वी गेट बाय ईमेल एंड ऑल्सो बाय पोस्ट, दोनों तरीके से आता है, ईमेल से भी आता है और बाय पोस्ट भी आता है। सो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन तो डिपेंड करता है आपके आपका बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसा ऑप्शनल ले रहे हो, फॉर एग्जांपल सम टॉपर्स दे डू दैट 11th 12th में ही ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर ले, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते, सो दैट दे गेट एज ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आपने कौन सी मिस्टेक्स करी थी? सी बेसिकली मिस्टेक्स, मैं I would like to point out my 3 mistakes which I would have corrected had I had experience or mentorship. First, I prepared in isolation, क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी थी। I was working, वो टाइम पे कोविड भी चल रहा था। So after that I decided to write my civil services. तो ये एक था, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन आइसोलेशन। तो आइसोलेशन में प्रिपेयर करते हो तो आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि आप ये करो वो करो। ये हो गया एक। तो एक ऐसे पीयर्स, आप पीयर्स के साथ स्टडी कर सकते हो कि सो दैट दे कैन यू नो आपके लेवल ऑफ कंपैटिबिलिटी हो, मतलब जैसे स्टडी में आपका कंपैटिबल लेवल हो, उसके साथ आप पीयर्स कंपैरिजन या पीयर स्टडी कर सकते हैं। पीयर स्टडी इन द सेंस कि भाई थोड़ा सा डिस्कस कर लिया 10-15 मिनट्स, नॉट मोर दैन दैट, 10-15 to 20 मिनट्स अ डे आप डिस्कस कर लिया कि क्या पढ़ा है, क्या न्यूज़ है, थोड़ा सा क्या करंट अफेयर्स चल रहा है, नॉट मोर दैन दैट, ये आप कर सकते हैं। ये आई कुड नॉट डू। सेकंड थिंग इज न्यूज़पेपर्स। आई वुड से दैट आई विल रिग्रेट इट। न्यूज़पेपर्स जो ये बाद में मुझे, मतलब आफ्टर क्लियरिंग मुझे ये हो गया, या फिर इंटरव्यू के टाइम पे मुझे थोड़ा सा ये इसमें ये आ गया। अदरवाइज सी न्यूज़पेपर से ऑलरेडी कवर्ड की 3 चीज़ें, 3 चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। एक तो इंडियन एक्सप्रेस से एक्सप्लेन सीरीज इज मस्ट। दूसरा चीज़ इज
सी न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द कोचिंग्स आर ऑलरेडी डूइंग दैट। फ्री मटेरियल्स लाइक विजन है, कोई कंपाइलेशन है, और अगर आप कंपाइलेशन फॉलो करते हैं तो किसी एक को ही फॉलो करिए और उसको रिलीजियसली फॉलो करिए। ठीक है, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल ही जाएंगे। बट ये चीज़ें जो है, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका एक्सप्लेनर पेज हो गया मिंट में, हिंदू में डेटा पॉइंट्स और एफएक्यूज हो गए, तो ये इट इज़ लाइक योर बेसिकली जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है, दे आर मोर लाइक, मतलब न्यूज़ से ज़्यादा ये यूपीएससी प्रिपरेशन के ओरिएंटेड पेपर्स हैं, न्यूज़ पेपर्स हैं। तो उसमें जो एक्सप्लेन सीरीज है दैट यू मस्ट रीड, द डेटा पॉइंट्स है यू मस्ट रीड, द एफएक्यूज इन हिंदू द मस्ट रीड, संडे का जो साइंस का आता है दैट यू मस्ट रीड। सी वैल्यू एडिशन कौन से सोर्सेज से करना चाहिए? एक तो हो गया न्यूज़पेपर आपका, जो आप खुद का निकालेंगे, ये जो है ना, जैसे मिंट का एक्सप्लेनर हो गया, हिंदू डेटा पॉइंट्स एफएक्यूज हो गया, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सीरीज में कुछ आएगा, ये आपको ज़रूर करना है। ये आपका अलग से डायरी मेंटेन करिए आप उसमें। और जैसे फैक्ट्स हो गए, कोट्स और फ्रेजेस, ये भी आपको मेंटेन करना है। आई एम ऑलरेडी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके, गुड टू नो। सो आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो देखिए, ऑफिस में काम करते करते आपको यू हैव टू फाइंड आउट टाइम। ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट है कि आप ऐसे रिसोर्सेज फाइंड आउट करिए। जैसे मैं क्या करता था ना, मैं मेरा ओपीडी खत्म होता था तो आई यूज टू, जब लोग रिलैक्स करते थे तो मैं मेरी सारी बुक्स मैंने पीडीएफ में रखी थी मेरे मोबाइल में, तो आई यूज टू रीड इट पीडीएफ में ही, या तो फिर यूट्यूब के वीडियोस देखता था। जैसे मैराथन वीडियोस है, आप उस पर भी ये कर सकते हैं। जैसे पीवाईक्यूज के मैराथन वीडियोस होते हैं, दे आर वेरी यूजफुल रिसोर्सेज। आप उसको 1.5x पे देख लीजिए, 2x पे देख लीजिए, दैट इज ये है। और क्या है, मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी, हाँ, ओके। जो मैं मिस्टेक्स बता रहा था, आई थिंक 2 मिस्टेक्स आई ऑलरेडी कवर्ड, कि पेयर्स से आप थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। और थर्ड थिंग मैं ये कहूँगा कि somehow I could not dedicate much of a time because I was working and I had family also। तो अगर आपके पास वक्त है, डेडिकेशन से आप कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट फॉर 1 or 2 अटेम्प्ट्स, तो इट वुड बी बेटर। ठीक है, वैल्यू एडेड मटेरियल विद प्रीलिम्स लेवल नॉलेज बेस मेंस के लिए। सी मेंस के लिए ना, व्हाट यू हैव टू इज डू इज, यू मस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। और उसमें एक है कि आपको वैल्यू एडिशन में करना क्या है। वैल्यू एडिशन में आपको फैक्ट्स ये करने हैं, और आजकल बहुत सारी पीडीएफ्स तो मिल भी जाती है वैल्यू एडेड मटेरियल्स की, जैसे डेटा फैक्ट्स फिगर्स की, आई थिंक सुनने की आती है, और बहुत सारे कोचिंग्स निकाल देते हैं आपको। अगर टेलीग्राम से मिलती है या फिर किसी के पास है तो दे आर गुड इनफ फॉर वैल्यू एडेड। और प्रीलिम्स लेवल का नॉलेज तो है ही अच्छा, बट मेंस के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में आपको थोड़ा जो करंट थीम्स है, जो करंट इश्यूज है, जैसे आपका सिलेबस दिया है, जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में आपको फर्स्ट थिंग आपको होनी चाहिए कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है। किसी भी चीज़ का 3 चीज़ों में एनालाइज करो आप। 3 पैरामीटर्स पे आपको हमेशा चीज़ें स्टडी करनी है। फर्स्ट इज प्रेजेंट स्टेटस, किसी भी चीज़ का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर many rape cases are happening, so what is the present case, present scenario of sexual assaults। फिर उसके बाद में आप ये कर सकते हैं कि इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये हो गया स्टेटस। उसके बाद में इशू क्या क्या है, मतलब क्यों हो रहे हैं, जो वेरियस कमिटीज़ ने कुछ फाइंडिंग्स किए होंगे, ये हो गया है। उसके बाद में सजेशंस, और सजेशंस हम देंगे तो ये क्या ऑर्गेनिक सजेशंस तो आती है, बट दोज हु हैव बीन रिकमेंडेड बाय कमिटीज़। जैसे आप अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे हो या साइबर सिक्योरिटी पे हो, तो स्पेसिफिक कमिटीज़ हैव गिवन रिकमेंडेशंस, तो वो रिकमेंडेशंस आपको ये करनी चाहिए। तो इस बेसिस पे आप मेंस के स्टडी करिए हर एक टॉपिक को। एक तो प्रेजेंट स्टेटस, इश्यूज, सॉल्यूशंस व्हिच ऑलरेडी हैव बीन फाउंड आउट, व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स ऑन दैट, एंड फोर्थ इज वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आप कोई कमिटी के सजेशंस लिख सकते हैं, और कमिटी, जो भी कमिटी है उनके आप याद कर लीजिए या फिर आप लर्न कर लीजिए, और इनोवेटिव पॉइंट्स ऑफ योर्स। और इसके लिए आप यू कैन सर्च
गूगल और चैट जीपीटी, उस पर भी आप सर्च करके जो प्रैक्टिकल लगते हैं दैट यू कैन मेंशन इन योर दिस थिंग। न्यूज़पेपर से हो गया, माय ऑप्शनल वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई प्रिपेयर्ड इट ऑनलाइन ओनली। जैसे पवन कुमार सर है, उनका लेक्चर्स मैंने सुने थे एंड वेरी इट वाज वेरी गुड। एंड सेकंड थिंग इज बुक बुक आई रेफर्ड इज आरिबम, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। मतलब बहुत लोगों ने कहा कि ये इससे नहीं होता है, उससे नहीं होता है, एंड दिस इज लाइक नोट्स एंड ये वो, बट फॉर मी आई ऑलवेज फोकस्ड कि रिसोर्सेज आप मिनिमम रखो, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप करो और रिवीजन ज़्यादा करो। सो आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हाँ, तो यू हैव टू फाइंड आउट टाइम, टाइम इज़ अ कंस्टेंट। तो आप ट्राई करिए मोबाइल में पीडीएफ रखने की, पीडीएफ से पढ़ लिया करिए जहाँ पे भी वक्त मिलता है। और दूसरी चीज़, आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवलिंग का जो वक्त है उसमें भी आप या तो यूट्यूब्स के वीडियो सुन सकते हैं, जैसे डेली न्यूज़ एनालिसिस है, या फिर आपका कोई टॉपिक है आप कवर कर सकते हैं। और मैराथन वीडियोस है, आप बोर हो जाते हैं तो वो, क्योंकि जस्ट आफ्टर स्विचिंग फ्रॉम जॉब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम अभी मैं ऑफिस का काम ख़त्म किया है और अभी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो ये डिफ़िकल्ट होता है। दैट टाइम यू कैन स्विच टू योर यूट्यूब एंड योर मैराथन वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी मैराथन वीडियोस अच्छे अच्छे आते हैं, 2x पर देख लीजिए, वो भी एक इससे होता क्या है ना कि रिवीजन क्विक हो जाता है, और जो हम सुनते हैं वो प्रैक्टिकली हमको थोड़ा कहीं पे भी क्लिक कर जाता है। प्लीज शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई कम टू दैट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और एक किसी ने पूछा था कि मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है। सी मॉक इंटरव्यूज में मुझे ये जो डिफरेंस लगा कि मॉक इंटरव्यूज में दे हैव प्रिपेयर देयर क्वेश्चन आर बिफोर कमिंग। ठीक है, तो उनके पास थोड़ा वो लेवरेज होता है कि दे प्रिपेयर क्वेश्चंस। और पैनल होता है तो हाफ एन आवर में दे ट्राई टू टटोलते हैं हर एक चीज़ पे, जो उनका एक्सपर्टीज होता है उस पर क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड सिंस इट इज़ वीडियो रिकॉर्डेड, और ये थोड़ा सा थोड़ा हाइप भी ज़्यादा हो जाता है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू एक्चुअल इंटरव्यू में आई वॉज नॉट ग्रिल्ड। थोड़ा सा कई जगह पे कई जगह पे क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो आप सीधा सॉरी बोल के निकल सकते हैं, मतलब rather than lying or rather than giving something, because what we have to understand is that there is a collective experience. Those who have been sitting there, they are already at least 30 years in service, and 5 people, तो collective experience of 150 years। और बहुत when you join civil services तो आपको पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है सिविल सर्विसेज में, डिफरेंट वैरायटी ऑफ वर्क यू गेट टू डू, तो उनका एक्सपीरियंस वास्ट होता है। और एंड सिंस दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस, मेक श्योर कि आप उनसे झूठ ना बोले या फिर कोई इनप्रैक्टिकल सा सोल्यूशन ना दें, क्योंकि वो उनके पास ऑलरेडी उतना एक्सपीरियंस है कि वो जज कर सकते हैं कि सो रादर बी योर सेल्फ। एंड सेकेंड थिंग इज डोंट ट्राई टू प्रिटेंड समथिंग विच यू आर नॉट। और एक चीज़ मुझे ये लगी कि बहुत सारी चीज़ें हम हमारे पास एक सेट पैटर्न होता है कि ऐसे ही कपड़े पहनो, ऐसे ही जाओ, तो ये थोड़ा सा उनको भी, बिकॉज दे हैव टू सेलेक्ट टॉप ऑफ पीपल, और ये हो जाता है ना उनके पास सब सेम ही आ रहे हैं, लोग सब सेम ही आंसर्स बक रहे हैं, सब सब सॉरी सब सेम ही आंसर्स बता रहे हैं, और सब लोग सेम ही ड्रेसिंग में आ रहे हैं, और सब लोग का व्यू पॉइंट वही है। तो आप वैल्यू एडेड कैसे प्रेजेंट कर सकते हो खुद को, ये आप ध्यान में रखिए। एंड while making your DAF also, that point of view also you have to सी, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, पता नहीं व्हाट इज़ द टेक ऑफ अदर्स, कि फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू आर गिविंग योर प्रीलिम्स और मेंस, यू आर एस्पिरेंट। ठीक है, यू आर एस्पिरेंट और यू आर इन दैट फेज ऑफ स्टूडेंट। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो यू हैव बीन जज्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, जो कि आपकी इंटीग्रिटी चेक करता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक करता है, आपकी रीजनिंग्स चेक करता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है।
तो ये थोड़ा-सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रीलिम्स, मेंस में ऐसा होता है कि हम पॉइंटर्स लिख रहे हैं, वो एक सेट फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। और जब हम ये कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ अलग से कि भाई मैं क्या, व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल, व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द सिविल सर्विसेज। ये थोड़ा अलग होना चाहिए हमारा। मैराथन में जस्ट ब्रीफ ही होने, रादर देन रिमेम्बरिंग ईच एंड एवरी फैक्ट दैट इज इन मैराथन सर इज फ्लडेड फैक्ट्स प्लीज। सी मैराथन में इसके लिए बोल रहा हूँ कि सी आप मोनोटोनस हो जाओगे अगर स्टडी करते हुए एक ही ये करोगे। अगर आप बुक से ही पढ़ रहे हो तो यू विल गेट व्हाट यू से, आप अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तो टॉपिक तक सीमित हो जाते हो। बट अगर आप मैराथन देखते हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इट मे नॉट बी सूटेबल फॉर एवरीवन, बट मैराथन के लिए मेरा ये मुझे इसलिए अच्छा लगता था कि बिकॉज फैक्ट जो है वो बार बार हैमर हो जाते हैं हमारे इस पे, ठीक है। और पता नहीं कोई कोई ट्रिक बता देता है और ऐसा हो जाता है ना, वो विजुअल्स भी कई बार क्रिएट कर देते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा मेमोरी ये ज़्यादा हो जाता है, बस बाकी तो कुछ नहीं है। इंटरव्यू में ड्रेस कोड मैटर करता है। आई थिंक यू शुड बी ड्रेस डिसेंटली, हेयर कट होना चाहिए थोड़ा सा, अगर शेविंग है तो शेविंग करके जाओ या फिर ट्रिम करो नीटली, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, बाकी तो क्या ही है। What was your why UPSC? See, basically when I was studying during my graduation also, I did my MBBS, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई डिड नॉट हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। ये मैंने सोचा भी नहीं था, एंड आई वाज नॉट वेरी inclined to civil services, but during COVID, it was I saw what administration can do, uh, because if you see COVID or any other endemic or pandemic for that matter, one would always think that doctors will be at forefront, and but during that period I got to know that administration can do wonders, because uh, I mean the way they controlled situation in Mumbai specifically, having so many slums and all. So that inspired me to join civil services. इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर? सी, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछना इज एंटायरली देयर प्रेरोगेटिव। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके एक तो चीज़ है, आप एक कर सकते हैं कि हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं कि ये मुझे प्री के लिए पढ़ना है, ये मुझे मेंस के लिए पढ़ना है, ये मुझे इंटरव्यू के लिए पढ़ना है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि हम होलिस्टिक प्रिपेयर करें, मेंस और प्री को डिवाइड ना करें जब स्टडी करते हैं। हम तभी उनको डिवाइड करें जब हम एग्जाम्स के लिए करते हैं, एग्जाम का स्ट्रेटेजी करते हैं। जैसे प्री का एग्जाम स्ट्रेटेजी अलग होगा, मेंस का एग्जाम स्ट्रेटेजी अलग होगा, बट हम स्टडी करते हैं तो ये तीनों को इंटीग्रेट करके पढ़ो। और इंटरव्यू में तो बेसिकली आपको ये करना है, फर्स्ट तो आपके खुद के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। SSB interview, yes, I have heard about SSB interview. In fact, I had given one after 12th for NDA, so I got selected also. So SSB, they are very particular about some things. SSB का वो भी है कि in the first thing they show you a picture for 30 seconds and they ask you to write a story in that. Pre-score, my pre-score was I think 99 or something, 99 point something, 99 or 100 something. कोचिंग लगाना ज़रूरी होती है क्या? कोचिंग लगाना, इट इज़ नॉट एंटायरली नेसेसरी, बट अब इसमें दो है। अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं तो आप कर सकते हो कोचिंग। कोचिंग विल हेल्प यू किस बारे में, मतलब अगर ऑप्शनल है तो ऑप्शनल को थोड़ा अच्छे से जज करने में हेल्प करेगी। अगर नहीं है तो आज से जैसा कुछ बिगड़ नहीं जाता है। देन इंटरव्यू ड्रेस कोड हो गया। सो आफ्टर दिस आई वुड लाइक टू स्विच टू एग्जाम स्ट्रैटेजी। ठीक है, जैसे हमने स्टडी की स्ट्रैटेजी के बारे में ये किया, तो एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में आई वुड लाइक टू डिस्कस अ बिट। अगर हम प्री की बात करते हैं तो प्री के लिए तो आपको स्टडी करने के टाइम पे PYQs में थीम्स एनालाइज करने हैं, पैटर्न्स एनालाइज करने हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनालाइज द ट्रैप्स, जो ट्रैप्स बिछाए जाते हैं, जैसे मिसमैच मिनिस्ट्री कर देते हैं, कोई डेटा
थोड़ा सा पॉइंट वाइज घुमा के दे देते हैं. सो दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ, क्योंकि अगर आप ट्रैप्स में नहीं फंसते हो तो यू आर, अगर आप ट्रैप्स में फंसते हो तो यू आर डायरेक्टली लूजिंग 2.66 मार्क्स, तो आप पीछे चले जाते हो. तो ये प्रीलिम्स एग्जाम का स्ट्रेटेजी में आई वुड लाइक टू डिस्कस इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि हमें ये जो चीज़ लगती है ना कि मैं ज़्यादा रिवाइज करूँगा और एग्ज़ाम के पहले मतलब रट के जाऊँगा तो आई विल हैव अ वेरी गुड सेशन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. बट ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशंस होता है कि हम जो लास्ट वीक में या फिर 1 मंथ में या ये हम लोग जो रिवाइज कर रहे हैं उसी में से क्वेश्चंस आए, वो नहीं आते हैं जनरली. दोज हु हैव गिवन इट आई वुड, दे वुड बी नोइंग इट. बट जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, इट्स माय लर्निंग फ्रॉम द यूपीएससी प्रीलिम्स इज दैट जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं दे आर बेस्ड, मतलब आपको एक बेस नॉलेज होना चाहिए जो आपको एनसीईआरटी से मिलेगा, आपके बेसिक बुक से मिलेगा. और उसके बाद में मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो अप्लाइड बेस्ड आते हैं. ठीक है, तो अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस में ये करना है कि हमें एक तो ट्रैप में नहीं फंसना है, क्वेश्चंस अच्छे से रीड करने हैं. ये बहुत सी बेसिक चीज़ है, लगेगा कि यार ये क्या है, बट रीडिंग द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्वेश्चन को रीड करिए, उसको थोड़ा समय दीजिए, लेट इट सिंक इन कि क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट ये है. और उसके बाद में अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू रिमेन काम एंड कंपोज. क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि पहले 5 क्वेश्चन हम देख लेते हैं और ऐसा लगता है कि जो टॉपिक मैंने कभी पढ़े ही नहीं है उसमें से क्वेश्चंस आए हैं, या तो जो थीम्स मैंने छोड़ी है या मैंने बहुत पहले पढ़ी थी अब उसको रिवाइज नहीं कर पाया तो मैं अब उसको आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. या तो फिर बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम शायद से नहीं हो. फॉर एग्जांपल 21 में वो क्रिकेट पे 3-4 क्वेश्चंस आ गए थे, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ गए थे. ये होता है, यूपीएससी विल गिव बमर बाउंसर एवरी टाइम, कुछ नया लेके आएगा, ये नहीं तो वो नहीं तो वो. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ठीक है, एग्जाम में जा रहे हो तो सी व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑलवेज कैरी आवर वेपन्स. हमारे वेपन्स क्या है, एक तो हम पढ़ें, उसको शार्पन करें, दैट इज रिविजन. तो ये 2 चीज़ें हम लेके चलते हैं. अब तीसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक इंडिस्पेंसिबल है फॉर क्लियरिंग द प्रीलिम्स, मतलब ये मैं गारंटी से कहता हूँ एंड आई एम स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट कि ऐसा नहीं है जो प्रीलिम्स नहीं क्लियर किए हैं वो कम पढ़े हैं. आई वुड से कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा रिवाइज किया है, बहुत ज़्यादा ये किया है. बट एक माइंड सेट होता है ना जो काम और कंपोज होना चाहिए फॉर आंसरिंग प्रीलिम्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई वुड लाइक टू स्ट्रेस इट टाइम एंड अगेन. क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गया था तो माई सेंटर वॉज मुंबई, तो मुंबई में एक गवर्नमेंट स्कूल में आया था. एंड बिलीव मी वहाँ पे क्या हो गया, मुंबई में यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट, मतलब एटलीस्ट फ़ैन तो बहुत, मतलब फुल स्पीड पे ही चलना चाहिए, उसके अगर कम होता है तो यू कांट बेयर इट. तो आफ्टरनून एग्ज़ाम में इट वाज लाइक द फ़ैन जो मेरे सर के ऊपर था दैट वाज नॉट वर्किंग, बंद था फ़ैन. तो देन मतलब वो जो इरिटेशन होता है कि यू विल ऑलवेज हैव इच कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. तो दैट टाइम आपको काम एंड कंपोज होना ज़रूरी है. कई बार ऐसा हो जाता है कि एग्जामिनर ने 5 मिनट्स शीट्स लेट दे दिए, भाई वो ठीक है 5 मिनट लेट हो गया तो हो गया, उसका बाद में जो देखा जाएगा वो होगा, वो देखा जाएगा. बट राइट नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोज, क्योंकि जो आपके पास है उस पर आप फोकस करिए और ये करिए. और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. बिकॉज आई हैव स्पोकन टू मेनी फ्रेंड्स और कुछ जो स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे, जब वो कॉल करते हैं तो मैंने तो ये किया था, मैं मॉक्स ये किए थे, मैंने तो ऐसा किया था वैसा किया था, बट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मुझे बहुत ये हो गया. तो ये चीज़ आपको मेंटेन करनी है, काम एंड कंपोज रहना है, भले कुछ भी हो जाए, वहाँ पे कुछ अननोन सिचुएशन हो जाए, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाए, तो उसी में आपको काम एंड कंपोज होना है और वही आपको डिसाइड करेगा. एटलीस्ट 2 to 4 मार्क्स आपके वहाँ पे ही ये कर देते हैं. जो काम एंड कंपोज हो जाता है और
2 to 4 मार्क्स आराम से उसी के बढ़ते हैं। और जो नहीं होता है काम एंड कंपोज, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू नॉट गेन दोज मार्क्स। और प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन पेपर आता है आपके सामने, तो वन स्ट्रैटेजी यू कैन डिवाइस इज, आप क्वेश्चन पेपर राउंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। बाय राउंड्स आई मीन कि फर्स्ट राउंड में आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको डेफिनेटली आते हैं, कि मुझे पता ही है इसका आंसर यही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा है अच्छे से, मैंने कहीं मॉक में देखा था, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये देखा था, इसमें मुझे कुछ ट्रैप नहीं लग रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ईजी है, लो हैंगिंग फ्रूट्स है। जैसे क्वेश्चन है राइट टू मैरी इज राइट अंडर विच फंडामेंटल आर्टिकल। तो ठीक है, फंडामेंटल आर्टिकल 21 के अंडर है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें पता है, बहुत बार हम पढ़ते हैं, बहुत बार सुनते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप पहले मार्क कर लो, ठीक है। तो उसी दौरान ये फर्स्ट राउंड में करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसको मार्क। सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है कि आई नो दैट इसमें मुझे 2 ऑप्शंस पता है कि 2 ऑप्शंस में से कोई तो आंसर है, तो मैं अभी मार्क नहीं करूंगा उसको। आई विल मार्क स्टार इन फ्रंट ऑफ दैट क्वेश्चन इन माई क्वेश्चन पेपर, पेंसिल से मार्क करूंगा मैं। तो मैं ये मार्क रखता हूँ, स्टार मार्क फॉर दोज क्वेश्चंस विच आई विल बी डेफिनेटली आंसरिंग लेटर, बिकॉज आई नो इसमें 50-50 हो जाएगा, 2 ऑप्शन में से ही एक है, दैट आई एम वेरी श्योर। फिर उसी राउंड में हम एक करेंगे जो क्वेश्चंस को हमें पता है कि एक ऑप्शन ये तो पक्का ही नहीं है, ठीक है, एक ऑप्शन पक्का ही नहीं है, बट 3 ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन है, तो उसको मैं राउंड करूंगा क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से कि ठीक है, तो ये मेरा है। और फोर्थ मैं ऐसे मार्क करूंगा जो मुझे पता ही नहीं है, मुझे पढ़ा ही नहीं है, मैं शायद से गलत कर दूं, तो उसको मैं कुछ अलग से मार्क कर दूंगा या फिर क्रॉस कर दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड में ये हो गया। तो सेकंड राउंड में मुझे वो क्वेश्चन पे फोकस करना है जो मैं 50-50 मार्क कर सकता हूँ, और उसमें मुझे मार्क करना है। और जो थर्ड राउंड है उसमें मुझे मार्क करने हैं 3 में से, जो मुझे ऑप्शन पता है कि ये 3 में से कोई भी हो सकता है, एक ऑप्शन नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई एम एबल टू अटेंड, तो मैं ये नंबर चूज करूँगा। और उसके बाद में इफ यू आर कमिंग टू मेंस, ये हो गया प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। प्रीलिम्स में और कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। फिर एक मेंस का जो है, मेंस का, अब मेंस में आंसर बनता कैसे है, गुड आंसर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो होता है बैड आंसर, बैड आंसर ऐसा कुछ होता नहीं है, एक गुड आंसर एंड द बेस्ट आंसर, बेटर आंसर और द बेस्ट आंसर। एक गुड आंसर में और बेस्ट आंसर में क्या डिफरेंशिएट करता है, तो वो वैल्यू एडेड मटेरियल डिफरेंशिएट करता है। तो मेंस के अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो जनरली सेक्शन ए और सेक्शन बी टाइप होते हैं। जो सेक्शन ए में होते हैं 10 मार्कर्स होते हैं, सेक्शन बी में 15 मार्कर्स होते हैं। सेक्शन 10 के जो क्वेश्चंस है ये सबको पता है, 7 मिनट्स में हमको क्वेश्चन एक सॉल्व करना है लगभग, और 15 मार्कर्स जो है वो 10 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो ये टाइमर आप लगा के चलिए। जनरली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज 15 मार्कर क्वेश्चंस जो होते हैं वो पहले सॉल्व करता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 15 मार्कर में मुझे थोड़ा बहुत मतलब आता है, तो मैं लिख दूंगा, तो एटलीस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट आंसर लेके हाफ मार्क मिल जाएंगे, तो 7.5, 6, 7 ऐसे मिल जाएंगे। और अगर 10 मार्कर्स मेरा बहुत ही अच्छा लिखता हूँ, फिर भी मुझे 4-5 ऐसे ही आने वाले, तो दैट ट्रेड ऑफ इज देयर। तो आप 15 मार्कर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन राइट ऑन 10 मार्कर्स। क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही होता है कि जो क्वेश्चन पेपर है, एक आंसर शीट आपको जो दिया जाता है उसी में स्पेस प्रोवाइडेड होता है। 10 मार्कर्स के लिए 2 पेजेस, 15 मार्कर्स के लिए 3 पेजेस, तो उसी में आंसर लिखना है, तो छूटने का बहुत कम चांसेस रहता है। व्हाट अ गुड आंसर शुड कॉन्स्टिट्यूट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है हमें, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हमें सबसे पहले ये देखना है क्या पूछा गया है, हमें वही आंसर लिखना है जो पूछा गया है। मेनी टाइम्स हम क्या करते हैं ना कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं वेरी, मतलब बहुत कम समय देके क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो हम क्वेश्चन बहुत कम पढ़ते हैं, तो इसके लिए हम पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं या फिर उसको एनालाइज अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो दैट टाइम वी माइट मिस व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है।
तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो पूछा है वही लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। अगर जो आता है वो नहीं लिखना है, जो पूछा गया है वही लिखना है, भले ही आपको कम फॉर्डर मटेरियल हो उसमें, बट जो पूछा गया है वही लिखना है। ये बहुत स्पेसिफिक है। ये GS3 में भी स्पेसिफिक है, GS2 में भी स्पेसिफिक है, GS1 में भी स्पेसिफिक है। जो पूछा गया है वही लिखो। ये आप गांठ मान लो कि ये हमें बहुत अच्छे से करना है कि व्हाट इज आस्क्ड, दैट वी हैव टू फोकस ऑन। सेकंड इज सब हेडिंग्स। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में 2-3 सब हेडिंग्स होती है, 2-3 सब क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। वो कई बार ऐसा हो गया, हम पहला क्वेश्चन इतना लिख लिए कि दूसरा क्वेश्चन मतलब उसका जो सब क्वेश्चन है वो आंसर नहीं कर पाए, तीसरा क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए। तो क्योंकि मार्क्स जब दिए जाएंगे, अगर 15 मार्क्स हैं तो वो डिवाइड वैसे होंगे कि फर्स्ट पार्ट 5, सेकंड पार्ट 5, थर्ड पार्ट 5। अगर मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ और फर्स्ट पार्ट में तीनों पेजेस भर रहा हूँ और बाकी के मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली आई विल बी गेटिंग मार्क्स आउट ऑफ 5 ओनली। तो ये हमें अवॉइड करना है। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज आस्क्ड, दैट ओनली वी हैव टू राइट। सेकंड थिंग इज सब हेडिंग्स, जो भी सब हेडिंग्स है, सब क्वेश्चंस है, वो हमें आंसर करनी है। थर्ड इज ट्राई टू कवर मैक्सिमम डायमेंशंस। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है तो उसमें मैक्सिमम डायमेंशंस मैं कैसे ला सकता हूँ। अब ये मैक्सिमम डायमेंशंस जो है ये हमें क्यों चाहिए। सपोज यू आर वर्किंग एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और फॉर दैट मैटर एनी अदर सर्विस, तो आपके पास कोई मैटर आता है फॉर डिस्कशन, फॉर योर डिसीजन, तो उसमें कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी एक एवरीबडी मस्ट बी नोइंग कि पतंजलि और एडवर्टाइजमेंट का ये चल रहा था कि somebody filed PIL कि भाई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है। तो सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर्ड कि एवरी एडवर्टाइजमेंट, नो एडवर्टाइजमेंट शैल गो विदाउट एनी एफिडेविट कि विल फॉलो एडवर्टाइजमेंट कोड। बट ऐसा हुआ ना कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स देखोगे तो करोड़ों में एड्स जाती है। एड्स आर देयर ऑन करोड्स, इन करोड्स। तो उतने करोड़ डॉक्यूमेंट्स का ये करना भी बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। तो उस पर भी सोल्यूशन करना है आपको, हर एक स्टेक होल्डर का सोचना है। तो इसके लिए जितने डायमेंशंस आप लेंगे, तो दैट मीन्स यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ दोज एंगल्स एंड ऑल्सो दोज स्टेक होल्डर्स। ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये करनी है। तो आप जैसे डायमेंशंस कवर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे पेस्टल हो गया, फिर एक बिफोर आफ्टर हो गया, जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, और यू कैन से मिडीवल ईरा, सॉरी एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट ईरा, मिडीवल ईरा, मॉडर्न ईरा, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये सारे आपको फ्रेमवर्क यूज़ करके आप मेंस का डायमेंशंस कवर कर सकते हैं, या फिर स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। आई नो एवरीबडी मस्ट बी डूइंग, बट आई एम रिपीटिंग इट। इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन कैसे करना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन में ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर उससे रिलेटेड कोई इवेंट हो, रिसेंटली हुआ, तो उसको आप ज़रूर मेंशन करिए। दैट विल शो कि आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। सेकंड थिंग, उससे आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यू आर अपडेटेड। सेकंड थिंग है, कोई स्टार्टलिंग फैक्ट है उससे रिलेटेड, तो आप उसको मेंशन करिए ज़रूर। वो थोड़ा सा आपका इंप्रेशन देगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गवर्नर इशू है, गवर्नर पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर का रोल क्या होना चाहिए, कि व्हाट इज़ योर स्टेक ऑन दिस। तो आप रिसेंटली जो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा अनबन हो रही है, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। स्टार्ट हो सकता है, इससे स्टार्ट कर सकते हैं आप। फिर कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिखिए। कोई हिस्टोरिक फैक्ट आपको याद आ रही है, अलग से है वो लेकिन वो रिलेटेड होनी चाहिए। अगर रिलेटेड है तो, रिलेवेंट है तो, दैट इज विल गिव यू मार्क्स। फिर बॉडी में क्या होना चाहिए, बॉडी में बेसिकली आपको ये लिखना है कि व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया है वही लिखो, और उसके बारे में सब हेडिंग, जो भी सब क्वेश्चन है वो आंसर करो ठीक से। और अब बॉडी में आप ये कर सकते हैं, जो उसमें कुछ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, पाई चार्ट मतलब चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बार डायग्राम वगैरह होता है वो कर सकते हैं, स्पोक्स एंड व्हील्स का वो डायग्राम कर सकते हैं। बेसिकली एक प्रेजेंट आप कैसे कर सकते हो, ये आइडिया आपको मिलेगा टॉपर्स कॉपी से, या फिर आजकल तो बहुत विजन वगैरह में भी जो उनके जो नोट्स आते हैं उसमें भी ये कई बार दिया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स ये। ठीक है। तो ये आप उस पर फोकस करिए। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू एडेड।
Third thing is conclusion. Conclusion should be your वे फॉरवर्ड है या फिर कोई कमिटी का रिकमेंडेशन है, वो आपको लिखने हैं, जो कमिटीज़ बनती है। और ये जो कमिटीज़ वगैरह के आप नाम लिखेंगे, अब देखो रिकमेंडेशन तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ, बट उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो तब बढ़ेगा जब कोई कमिटी ने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है। हाँ, उसके अलावा और कुछ प्रपोजल्स है, फॉर एग्जांपल आप लॉ कमीशन को मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो पॉलिटी में आता है तो लॉ कमीशन ने कुछ ना कुछ तो कहा ही है उसमें। लॉ कमीशन का रिकमेंडेशंस आप ये कर सकते हैं। ये हो गया कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और ये जो स्ट्रक्चर है मोर और लेस फॉलो करिए आप। उसमें डायग्राम्स वगैरह तो डाल सकते हैं, एंड बेसिकली योर फोकस फर्स्ट शुड बी ऑन व्हाट इज आस्क्ड, एंड जो सब हेडिंग्स है वो आंसर करने हैं, ठीक है। और मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, मतलब जो भी 20 क्वेश्चंस है 20 मार्क्स, मतलब 20 क्वेश्चंस राइट करना आप ट्राई करिए। उसके लिए यू हैव द मंत्रा इज 7 मिनट्स में आपको 10 मार्कर लिखना है, और 10 मिनट्स में आपको 15 मार्कर लिखना है। ये अगर टाइम फॉलो करोगे तो पेपर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में। बेसिकली एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि आपने मिस्टेक्स क्या की, तो मैं मिस्टेक्स नहीं बोलूँगा, बट आई वुड से कि मेरे पास एक टाइम कंस्ट्रेंट बहुत था, तो मैं आंसर राइटिंग ज़्यादा नहीं कर पाता था। बट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू मेंटली मैं प्रिपेयर करता था आंसर्स। अब मेंटली प्रिपेयर करना आंसर्स इन द सेंस, अगर क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है तो आई वुड लाइक, मतलब ये नहीं है कि मैं उसको लिख लूँगा, बट आई वुड से कि इसमें मुझे इंट्रोडक्शन में क्या करूँगा। अगर मेरे पास कोई आर्टिकल है या फिर मेरे पास कोई फैक्ट है, तो मैं ओके, ये अगर थीम पे क्वेश्चन आता है तो मैं ये इंट्रोडक्शन लिख पाऊंगा, क्योंकि थीम्स रिपीट होती है, आई एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। दूसरा था कि बॉडी में पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं, तो फिर उसका, और पॉइंट्स आपको ज़्यादा मेंशन करने हैं। जैसे मैंने बोला कि डायमेंशंस आपको ज़्यादा जनरेट करने हैं, तो ये आप जैसे जैसे आंसर्स देखेंगे या लिखेंगे, ये टॉपर्स कॉपी से आपको ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने लायक, कि आंसर्स में डायमेंशंस कैसे जनरेट किए जाते हैं। नहीं मतलब, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होता ही है, तो बस थोड़ा सा ये करके उसको मॉडिफाई करके आप लिख सकते हैं। बट ये नहीं है कि कुछ भी लिख रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो मतलब स्पेसिफिक पॉइंट्स है, वो आप पहले लिखिए, और जो जेनरिक पॉइंट्स है उसको एंड में रखिए। सो योर आंसर शुड बी फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि बस कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट वाला ये है और उसको आपने पहले डाल दिया, तो दैट विल गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन कि भाई ये मतलब रटे हुए तोते जैसा लिख रहा है। इट शुड साउंड लाइक अ प्रैक्टिकल ये। ओके, ये हो गया, डायमेंशंस कवर्ड हो गए, और आपका टाइम ड्यूरेशन हो गया। फॉर इथिक्स आई वुड से एक मेरा ये रहता था कि मैं केस स्टडीज पहले सॉल्व करता था, और उसके बाद में जो 10 मार्कर्स है वो लिखता था, ठीक है। तो हाँ, इथिक्स में आप ये भी कर सकते हैं कि जो डेफिनेशंस वगैरह है उसमें भी ट्राई टू ऐड संस्कृत श्लोक जो है, उसमें भी कोई आप विल्सन स्पोक्स डायग्राम या फिर लीनियर डायग्राम, या फिर मतलब दिस इज लीडिंग टू दिस, दिस इज लीडिंग टू दिस, ऐसा भी करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई वुड टेक सर्टन क्वेश्चंस। हाउ मेनी आवर्स यूज टू स्टडी? ओके, एज आई टोल्ड यू, बीइंग अ डॉक्टर एंड अ फैमिली मैन, आई यूज टू स्टडी एटलीस्ट 4 to 5 hours a day. दैट वाज मिनिमम। तो जब मेरे बच्चे बच्चे सो जाते थे तब भी मैं पढ़ता था, और जब भी मुझे वक्त मिलता था तो आई यूज टू फोकस ऑन स्टडीज। एंड ये तो मतलब आई वॉज नॉट ऑन इंस्टा, और सोशल मीडिया तो मैं यूज़ ही नहीं करता था। इंस्टा तो था ही नहीं मेरा, खैर। तो फेसबुक वगैरह भी यूज़ नहीं करता था, तो फेयरली। और एक एक आप चीज़ कर सकते हैं, जैसे आप नोटिफिकेशन होते हैं, अब ये जिसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है आप कर सकते हैं। आई स्विच ऑफ माई नोटिफिकेशंस, जैसे व्हाट्सअप के भी हो गए या फिर इंस्टा के भी हो गए या फिर कहीं के भी हो गए, तो आई डोंट गेट नोटिफिकेशंस। क्योंकि मेरा ये है कि अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो जब मुझे चाहिए तभी मैं देखूंगा, अनटिल अनलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी तो खैर, आप ये नोटिफिकेशंस बंद करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कोई कि भाई मैं नहीं मैसेज देखूंगा। सी, अब 2 घंटे का पढ़ाई करोगे, उसके दौरान नहीं देखूंगा तो कुछ आफत आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। और जिसको अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा ही, बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी आ गई, तो वो कॉल ही कर लेगा। तो ये नोटिफिकेशंस बंद करना भी एक सजेशन है कि अगर आप दूर होना चाहते हैं उससे, तो ठीक
ओके, ये क्या है? तो 4 to 5 hours इज वेरी डिसेंट स्टडी टाइम इफ यू आर स्टडिंग विथ थोरो फोकस, ये भी ठीक है। और उसमें आप एक तो अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको स्टडी करना है ज़्यादा, जिसके पास नहीं है तो ठीक है 4 5 hours में। बट जिसके पास ज़्यादा वक्त है तो 6 to 8 hours स्टडी, मेरे ख्याल 6 hours स्टडी आप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा फिर आप डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख लिया, मैराथन वीडियो देख लिया, या फिर आंसर राइटिंग कर लिया, या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मॉक लगा लिया, ये कर सकते हैं। हाउ टू डील विद बाउंसर्स इन मेंस? वेरी गुड क्वेश्चंस। बाउंसर्स तो मेंस में आनी है, एक दो बाउंसर्स तो आनी है। तो इसके लिए आपको टॉपर्स कॉपी हेल्प करेगी, और जो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग है वो फॉर्डर मटेरियल की तरह काम करेगा, क्योंकि हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ तो फॉर्डर मटेरियल होता है। आप अगर मेंस के आंसर्स दिखेंगे तो उसमें एक तो चीज़ होती है कि पॉइंटर्स होते हैं, एक डायमेंशन होता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया, इकोनॉमिकल डायमेंशन हो गया, सोशल डायमेंशन हो गया। तो ये तो आपका हो गया एक फ्रेमवर्क हो गया, और उसके बाद जो होता है वो तो फॉर्डर मटेरियल होता है। आप स्पेसिफिक कुछ है तो लिखते हैं, नहीं तो फिर फॉर्डर मटेरियल को मॉडिफाई करो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और फिर भी अगर बाउंसर्स आती है तो देखो कुछ ना कुछ तो आपको क्यों लेना ही है, बिकॉज इन माय ओपिनियन कि आप अगर स्टडी करते हैं तो बहुत सारी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है, वो शायद से आपको मतलब एकदम ही कुछ स्पेसिफिक पूछ लिया तो शायद से हम आंसर ना कर पाए, बट उसमें भी हम वी कैन फाइंड आउट अ वे, क्योंकि हम इतना पढ़ते हैं। जैसे कहीं GS 1 में पढ़ा हो वो भी GS 3 में लगा सकते हैं, GS 2 में पढ़ा है वो कभी GS 4 में आ जाता है। मतलब दैट वे यू कैन हैंडल द क्वेश्चंस, और हो जाता है। जब आप इंटीग्रेटेड स्टडी करते हो तो हो जाता है। और एक मेंस राइटिंग में मुझे और एक बात कहनी थी कि जनरली अब क्वेश्चंस आते हैं तो GS के अगर आंसर्स देखें हम GS 1 GS 2, तो कई बार ऐसे होता है ना कि जो टॉपिक्स होते हैं कुछ ओवरलैपिंग होते हैं, बट हमें ट्राई करना चाहिए कि अगर मैं GS 2 का आंसर लिखना हूँ तो जो GS 2 का मेरा सिलेबस है उससे रिलेटेड होना चाहिए। मतलब मोर ऑन दैट लाइन्स कि GS 1 से ज़्यादा मुझे GS 2 का आंसर लगना चाहिए। तो ये भी डिफरेंशिएट करना है हमें। इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बट आप प्रैक्टिस से हो जाएगा। आई होप बाउंसर्स का मैंने बता दिया। बाउंसर्स का तो एक है कि आपको क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है, मैक्सिमम तो छोड़ना है ही नहीं। अगर 20 आउट ऑफ 20 आप लिखते हो तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं, ये मैंने सभी कहते हैं। दूसरा चीज़ है बाउंसर्स को आप कोई भी, इसके लिए मैं बोलता हूँ सिलेबस आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आप सिलेबस ये होता है, सिलेबस अच्छे से आता है तो आप बाउंसर्स आपको नहीं लगेगा, कुछ ना कहीं से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास फॉर्डर मटेरियल तो इतना है ही है। और द बेस्ट थिंग आई बिलीव अबाउट दिस यूपीएससी प्रिपरेशन कि आपके पास फॉर्डर मटेरियल बहुत सारा हो जाता है। आपके पास कुछ नहीं आएगा तो भी आप कहीं ना कुछ थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली बोल पाओगे अगर डिसेंटली स्टडी किया है तो। तो ये बाउंसर्स से ज़्यादा घबराना नहीं है, बस यही है। आते हैं तो थोड़ा बहुत टैकल और हो जाता है अगर आपका सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है। सिलेबस आई एम सेइंग कि जो सिलेबस का यूपीएससी से आता है सिलेबस पढ़ो उसके अराउंड थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिलेबस से रिलेटेड ही आता है। तो उससे आप आपका फॉर्डर मटेरियल तैयार करके, और ये फॉर्डर मटेरियल कहाँ से मिलेगा आपको? न्यूज़पेपर से मिलेगा, ये मिलेगा आपको जो डिस्कशंस सुनते हैं आप टीवी पे, संसद के डिबेट्स वगैरह उस पर मिलेगा। तीसरा मिलेगा आपको आपके एसेज कहीं से पढ़े टॉपर्स कॉपी से मिलेगा, ये सब वहाँ से मिलेगा। हाउ टू इम्प्रूव बेसिक इंग्लिश फॉर आंसर राइटिंग? जब आंसर्स लिखते हैं तो माइंड में पॉइंट्स ही नहीं बनते। सी माइंड में पॉइंट्स आपके बनने लगेंगे, उसके लिए आपको कुछ फ्रेमवर्क्स थोड़े से याद करने होंगे। जैसे पेस्टल फ्रेमवर्क हो गया कि हर एक चीज़ का पॉलिटिकल एंगल क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिकल डायमेंशंस क्या है, सोशल एस्पेक्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। तो ये बेसिस पे आपको, ये टेम्पलेट है, इस पे आप पॉइंट फॉर्म करिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग व्हाट इज गांधी जीज रिलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड, तो अब ये तो भाई मैं लिखने को मैं कहीं से मतलब मुझे स्टार्ट ना एंड, मैं तो बहकते जाऊंगा इसमें। तो इसके लिए मुझे चाहिए एक फ्रेमवर्क, तो मैं फ्रेमवर्क यूज करूंगा पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल,
इकोनॉमिकल, इथिकल, ये सब लीगल, ये सब एंगल यूज़ करूँगा मैं। अगर मुझे ये नहीं यूज़ करना है, कोई और क्वेश्चन में और करना है, तो एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ये टाइम में उस चीज़ से रिलेटेड क्या होता था, ठीक है। अगर मुझे टेम्पल का ये करना है, टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसे चेंज हुआ, तो मैं ये कर सकता हूँ, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। अगर नहीं करना है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, मॉडर्न टाइम्स, ये कर सकता हूँ मैं। ये फ्रेमवर्क आप यूज़ कर लीजिए, उससे आपके पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी एसेज यू हैड रिटन बिफोर मीन्स, सी व्हाट आई एम सेइंग किस, मैं ऐसे तो ज़्यादा नहीं लिख पाता। मैंने टू बी फ्रैंक, आई डिड नॉट डू आंसर राइटिंग एज ऑन पेपर, बट जब भी मैं लिखता था तो ये ध्यान में रखता था कि 7 मिनट्स में मुझे लिखना ही है। जितना लिखूंगा मैं 7 मिनट्स के अंदर लिखूंगा और 10 मिनट्स के अंदर लिखूंगा। और ऐसे के लिए तो आपके पास यू हैव गुड टाइम, इनफ टाइम। एक 1.5 आवर में एक ऐसे लिखना होता है, तो 15 मिनट्स में आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए और पीछे रफ वर्क में आप पॉइंटर्स लिखिए और उसके बाद में उसको थ्रेड कनेक्ट कर लीजिए। तो एसेज मैं कहूँगा जो रिपीटेड थीम्स है उस पे आप ना भी लिखेंगे, पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट इससे लिखने चाहिए। अगर आपके पास वक्त है तो डेफिनेटली यू ट्राई टू राइट, क्योंकि अगर सिलेक्शन है तो ये स्ट्रैटेजी आप ध्यान में रखिए, डबल ओ डबल ई, दो ऑप्शनल्स होते हैं और एसए और एथिक्स, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी में मार्क्स आएंगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सॉरी आई मिस द एथिक्स वाला पार्ट। एथिक्स के लिए आई वुड से अतुल गर्ग सर की वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। सम प्लेलिस्ट वाज देयर ऑन यूट्यूब, तो वो आप देख सकते हैं। वेरी गुड कवरेज है उसका, तो आप वो देख सकते हैं, अच्छा सोर्स है। बाकी बुक्स वगैरह तो है, बट आई बिलीव उनका जो नोट्स है और उनका हैंड रिटन नोट्स भी है, और आई थिंक प्रेप लैडर का नोट्स था उनका कहीं पे, और उनका हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाता है मार्केट में, तो आप उससे कर सकते हैं फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और पी वाई क्यूज़ आप बहुत अच्छे से करिए इथिक्स के लिए, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट होते हैं, थीम्स वही रहती है। आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन कि थीम्स वही रहती है, जस्ट वर्ड का प्ले है, ठीक है। और एथिक्स के लिए आप एक पीयूष सर करके हैं, उनका भी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, 10-10, 15-15 मिनट की। जैसे आप बोर हो जाते हो ना, कि अगर ये पढ़ लिया मैंने, अब मैं बोर हो गया हूँ, बोर हो गई हूँ, वो टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि वीडियोस देख लिया, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ या फिर मैं लंच कर रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त है, मैं सुन सकता हूँ ये 10-15 मिनट में, और वो ल्यूसिड वे में है, तो अच्छे से ये हो जाएगा। हाउ टू इम्प्रूव बेसिक इंग्लिश, सी बेसिक इंग्लिश बहुत इजी है, कोई ये नहीं, पहले तो उसका डर निकाल दीजिए। एक तो आपके आंसर्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। और कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप आंसर्स लिखते हो, तो मोस्टली आपके पास पॉइंटर्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ग्रामेटिकल सेंटेंस अच्छे से फॉर्म करो के लिखो, वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर नहीं करनी है। बट कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम बस पॉइंटर्स लिख देते हैं, तो वो भी काम चल जाता है, ऐसा नहीं है। और वैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो उससे भी आपका बेसिक ये हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि कोई इंग्लिश का जो है, आप न्यूज़ बुलेटिन सुन लीजिए, जैसे डीडी न्यूज़ हो गया, या फिर कोई भी एक पसंदीदा न्यूज़ चैनल को आप सुन सकते हैं इंग्लिश के लिए, वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, और आसानी से हो जाएगा, बट एक डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से रखोगे। सी मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टू बी कंसिस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। बहुत बार हम मोटिवेशन लूज करते हैं, फिर लगता है कि यार क्या ही करूं, इससे नहीं हो रहा है। बट अल्टीमेट एम जो है हमारा, हमारे हाथ में है कि हम प्रयास करें। प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए, उसी पे फोकस करना चाहिए। बाकी आउटकम इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, दैट इज़ टू बी एक्सेप्टेड, बट हमें इसके लिए प्रयत्न नहीं छोड़ने चाहिए। हाउ टू मैनेज सब्जेक्ट टू कवर होल सिलेबस विद इन 1 ईयर, ओके। सी बेसिकली इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो आप सिलेबस को ही अपना बाइबल मान लीजिए। सिलेबस जो है उसको स्टिक टू द सिलेबस, बाकी कुछ भी नहीं करना है। दूसरी चीज़, मिनिमाइज योर बुक लिस्ट, जो बेसिक बुक्स है उतने ही रखिए।
उसको बार 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 रिवाइज करिए, ठीक है। बस यही है सब्जेक्ट को तो। और अगर आप सिलेबस देखें और बुक्स देखें तो कवर हो सकता है, 1 ईयर में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि आपको डेडिकेशन से करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। और रिसोर्सेज जो है लिमिटेड रखिए आपके। बुक अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो ये नहीं है कि मैं दूसरा भी पढ़ के देख लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं। लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ तो लक्ष्मीकांत ही बेसिक अच्छे से पढ़िए। और करंट अफेयर्स के लिए PT 365 या मेन्स PT 365 फॉर प्रीलिम्स, 365 मेंस के लिए वो। बट वो 2 साल का करना है। 2 साल का इसके लिए कि वो थीम्स कभी ये साल में थी तो वो अगले साल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू? ओके, सो यू कैन, ऑल ऑफ यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टा ID, ठीक है। मैं जाते जाते दे दूंगा इंस्टा ID। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? वेरी गुड क्वेश्चन। स्ट्रेस तो आना ही है, और अगर अच्छे एस्पेरेंट हो तो आना भी चाहिए, बढ़िया बात है। तो स्ट्रेस के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्लीप। नींद आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, एटलीस्ट 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स। अगर आप वर्किंग है तो 6 to 7 आवर्स, ठीक है। अगर आप वर्किंग नहीं हो तो 7 to 8 आवर्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो आप, जैसे मैंने पहले कहा कि जो 3 चीज़ें करनी है उसमें एक हॉबी आप डेवलप कर लीजिए, कुछ भी हॉबी हो, चाहे आपको चेस खेलना हो, चाहे आपको सॉन्ग गाना हो या फिर सुनना हो, अ, या फिर आपको कोई खेल खेलना है, आउटडोर एक्टिविटी, दैट ऑल्सो यू कैन डू। बट लिमिटेड रखिए उसको, 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर की। और थर्ड थिंग यू कैन डू इज गाइडेड मेडिटेशन। अब ये जो गाइडेड मेडिटेशन है, मतलब भारी भरकम वर्ड लगता है, बट है बहुत आसान। यूट्यूब आप ओपन कर लीजिए, यूट्यूब में ओपन करेंगे तो गाइडेड मेडिटेशन डालेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो जस्ट आंख बंद करके जस्ट लिसन टू द जस्ट लिसन व्हाट दे आर सेइंग और व्हाट दे आर टेलिंग यू। बस कुछ नहीं, आप थोड़ा सा कर लीजिए, बहुत अच्छे से माइंड काम और कंपोज हो जाएगा। और फोर्थ थिंग इज योर डाइट। डाइट में ऐसी चीज़ें मत लो जैसे कॉफ़ी, चाय आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम नहीं लेना चाहिए। जैसे 7 or 8 o'clock इन द इवनिंग में नहीं लोगे तो नींद भी अच्छे से आएगी, तो स्ट्रेस का जो साइकिल है वो बिल्डअप नहीं होगा। और फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि निगेटिव लोगों से दूर रहना है। निगेटिव लोगों से दूर रहना है, निगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। कि कोई बोलेगा कि क्या है ये, क्या करेगा, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम कितने साल से पढ़े जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तेरे तेरे साथ वाले कहाँ जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फलाना टिमकाना, बहुत बोलेंगे ऐसा। निगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखना है, निगेटिव कमेंट से दूरी बनाए रखना है। मन में निगेटिव विचार नहीं आने देने बेसिकली। बहुत सारे लोग कहेंगे और लगता है यार ये तो क्या है, यूपीएससी में ऐसा हो रहा है, यूपीएससी में लक पे चलता है। भाई जो दे रहे हैं सिंसियरली उनका हो ही रहा है ना। तो निगेटिव लोगों से दूर रहो, निगेटिव एनर्जी से दूर रहो, बाकी दुनियादारी से दूर रहो थोड़ी देर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फोकस ऑन योर गोल, ठीक है। एक बचपन में एक स्टोरी सुनते थे कि जैसे अर्जुन को ये दिखता था, ही कुड ओनली सी द आई ऑफ फिश, वैसे हमें बस हमारा टारगेट दिखना चाहिए और हमें बस प्रयास करना है उसके प्रति, ठीक है। और मंजिल मिलने ही वाली है। और ज़रूरी नहीं कि सबको जो हम चाहे वही हो, बट अगर आप एफर्ट्स करते हो ना तो अलग से सेटिस्फेक्शन आती है कि मैंने एफर्ट्स किए हैं। बाकी इट्स अप टू द ऑलमाइटी। टेलीग्राम ID और अदर, ओके, ओके ओके। नो, मैंने MBBS के साथ प्रिपरेशन नहीं किया था। आई डिड माई MBBS, उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था। आई वर्क इन प्राइवेट एज वेल एज इन गवर्नमेंट सेटअप्स। उसके बाद में आई डिसाइडेड टू राइट सिविल सर्विसेज आफ्टर कोविड, जो कि मेरा मोटिवेशन भी था। तो नहीं, MBBS के साथ प्रिपरेशन नहीं की तब, इतना इंक्लिनेशन नहीं था सिविल सर्विसेज के बारे में, ठीक है। और so I think I have covered most of the things which I wanted to cover. So in a quick recap, I would like to say, should I do first MBBS? Okay, you are which standard you are in? You are in 12th standard or you are already doing NEET UG? Okay.
So you are wanting to go for MBBS. Okay. See, it depends. What is your ultimate aim? What do you want? You want to join services, civil services? तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आई थिंक सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करिए। अगर आपका एम है कि आई एम डाइसी अबाउट इट, कि मुझे करना है नहीं करना है, और अगर आपका एमबीबीएस पैशन है, मेडिसिन पैशन है, तो यू कैन परस्यू दैट। ये इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। बट अगर आप अल्टीमेट एम आपका सिविल सर्विसेज ही है, तो यू कैन फोकस मोर ऑन दिस सिविल सर्विस प्रिपरेशन। ओके, देन एमबीबीएस की बात तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एमबीबीएस में व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आप ग्रेजुएशन का एमबीबीएस कर रहे हैं, तो टू टू थ्री थिंग्स यू कैन डू साइमल्टेनियसली। फर्स्ट थिंग इज, आप न्यूज़पेपर डेली से पढ़िए, आज से पढ़िए, कल से पढ़िए, ठीक है। सेकंड थिंग है आपका, कोई न्यूज़ सुन लीजिए, जैसे डीडी न्यूज़ वगैरह हो गया, उसका जो ये है, तो वो आपको करंट अफेयर्स का और इसका ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव दे देगा। थर्ड थिंग इज, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 6 to 12 का जो है, ये आपका बेसिक फाउंडेशन बना देगा, और उसके बाद आप बस पीवाईक्यू कर लीजिएगा, चलते रहेगा। ये तो आप 3 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो आपका एनसीईआरटी, सेकंड थिंग आपका न्यूज़ सुनना, और थर्ड आपका न्यूज़पेपर, जो इंडियन एक्सप्रेस और ये है। So I would like to summarize it for all of us. It's a key learnings for all of us, for you also and for me also. First thing is strategy of study, strategy of exam. Strategy of study में ये करना है कि syllabus, PYQ एनालाइज करना है आपको, थीम्स पे, कौन सी थीम्स आ रही है, कौन सी थीम्स रिपीट हो रही है, एंड पैटर्न पे अवॉइड ट्रैप्स। जो ट्रैप्स होते हैं प्रीलिम्स में ट्रैप्स से हमें बचना है, क्योंकि वो 2-4 मार्क्स खा जाते हैं, वही सिलेक्शन खा जाता है हमारा, ठीक है। तीसरी चीज़ है, हमको यूज़ योर रिसोर्सेज वेरी वाइजली। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, एंड दैट रिसोर्सेज टाइम, क्योंकि बाकी के रिसोर्सेज हमारे पास बहुत है, फ्री है, पेड है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट व्हाट द अल्टीमेट रिसोर्स विच वी हैव इज़ टाइम। और टाइम हमारे पास कम है, 24 आवर्स ये दिन में, उसमें से हमें बाकी भी कंट्रीब्यूशन है, तो ये है, लिमिटेड टाइम है, उसको जुडिशियसली वाइजली यूज़ करना है। इसके लिए हमें रिसोर्सेज भी वाइजली यूज़ करने हैं। Single book multiple times will yield better results than multiple books single time. ये मंत्र है हमारा। सिलेबस, पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज करना है। थर्ड थिंग इज सिंगल बुक, मल्टीपल रिविजन्स। फोर्थ इज फ्री रिसोर्सेज बट लिमिटेड, जो हमें ये करना है, एंड डोंट वेस्ट टाइम। टाइम इज आवर अल्टीमेट रिसोर्स, वो हमें वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये हो गया। सेकंड थिंग इज स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग एग्जाम। जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपकी काम एंड कंपोज नेचर, ठीक है। काम एंड कंपोज अगर आप रहते हो, तो आपके 2 या 4 मार्क्स बढ़ते ही हैं, कम नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट इज सी सैट। सी सैट को निगलेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पे 130 वगैरह ला रहे हैं। आई नो सम ऑफ माई पर्सनल फ्रेंड्स जो मतलब 110, 115 ला रहे थे। मतलब इट्स नॉट अ लाई, इट्स ट्रुथ, इट्स अ फैक्ट, इट्स वेरी मच देयर कि आप पेपर 1 में अच्छे से ला रहे हैं, बट सी सेट में नहीं हो रहा है। बट ये भी हमें ये करना है, बट अल्टीमेटली क्योंकि हमारा एम तो एग्ज़ाम पास करना है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ ये करना है। तो सी सेट के लिए कुछ मैं रिकमेंड करूँगा। सी सेट के लिए आप देखो, फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। सी सेट के लिए यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनती है, मेरे ख्याल से स्लीपी क्लासेस की भी है, तो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है, वो आप देख लीजिए। और उसमें से कुछ क्वेश्चंस है वो एनालाइज करते हैं, वो आप देख लीजिए, तो थोड़ा रेगुलर टच में रहिए उसके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब मैं एग्ज़ाम आएगी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले देखूंगा, नहीं। ये स्टार्टिंग से ही करिए, इसको इनकॉर्पोरेट करिए डेली लाइफ में, इसको हैबिट बना लीजिए, ठीक है। because your thoughts becomes your actions becomes your habit, and your habit becomes your character। तो ये हमारे कैरेक्टर में होना चाहिए, हमारे जहन में होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, जैसे मेरा सोशल मीडिया से डिस्टेंस हो गया, जैसे मेरा कोई
छोटी सी हॉबी जो 15-20 मिनट से हाफ एन आवर के लिए करनी है मुझे, मैं पीयर से डिस्कस करूँगा 15-20 या हाफ एन आवर के लिए रिगार्डिंग सिलेबस, करंट अफेयर्स, यहीं पे और कुछ नहीं। ठीक है। जैसे स्लीप मेंटेन करना है, डाइट, ये बहुत सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं, ये नहीं करना है। ठीक है। और सीसैट के लिए जो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है आजकल में, क्योंकि सिलेक्शन खा जा रहा है लोगों के। तो आप फ्री रिसोर्सेस है उसको डेली में देख लीजिए जो भी है। आई एम नॉट फ्रॉम स्लीपी क्लासेस और आई एम फ्रॉम एनी अदर क्लासेस, बट जस्ट सेइंग कि ये फ्री रिसोर्सेस है, आप उसको यूज़ करिए। ठीक है। अगर आपको कोई और भी रिसोर्स मिलता है तो बढ़िया ही है, यू कैन शेयर विद अदर एस्पिरेंट्स और मी ऑल्सो। तो वो एक चीज़ आप कर सकते हैं सी सेट के लिए। और एक मेरा सजेशन रहेगा पर्सनली कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हम क्या करते हैं ना, मॉक्स लगाते हैं या फिर पी वाई क्यूज सॉल्व करते हैं। तो पी वाई क्यूज हम, ठीक है, पी वाई क्यूज तो सॉल्व करें, लेकिन आप जब किसी कोचिंग का टेस्ट लेते हैं तो डोंट उसको ना बिट्स एंड पीसेस में मत सॉल्व कीजिएगा। जब भी आप, मतलब आपको पता है संडे को एग्ज़ाम होने वाली है, मेरा प्री होगा संडे को, कोई भी संडे को ही होगा, तो 10 से 12 और 2 to 4, तो यही समय में होने वाला है मेरा एग्ज़ाम, ये मुझे पता है। तो मैं अगर मॉक सॉल्व करता हूँ तो मैं संडे को ही सॉल्व करूँगा, और मैं 10 to 12 में पहला पेपर दूंगा, 2 to 4 में दूसरा पेपर दूंगा, उसी दिन दूंगा। इससे मुझे ये हो जाएगा कि एग्ज़ाम से जो फ़ैमिलियरिटी होती है, जो एग्ज़ाम में बर्डन आता है, वो नहीं आएगा मुझे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये प्री के लिए भी है, और ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में ना हाथ लिख-लिख के हालत ख़राब हो जाती है। जैसे हम ऐसे पेपर तो हो गया, दूसरे दिन जीएस 1 के बाद जीएस 2 में हालत ख़राब हो जाती है, और सबसे ज़्यादा जो वाट लगती है जीएस 4 में लगती है। ठीक है? तो जीएस 4 के लिए ऐसे हो जाता है, मतलब हाथ लिख नहीं पाते। तो इसके लिए एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था कि फर्स्ट थिंग है, एग्ज़ाम से 1 वीक पहले, 1 वीक पहले जो है आईएएस बाबा या फिर और भी टेस्ट सीरीज़ है, आई थिंक शंकर आईएएस भी, वो मॉक्स अरेंज करते हैं, ऑनलाइन मॉक्स भी होते हैं, या फिर आप उनके सेंटर पे जाके फ्री मॉक्स दे सकते हैं। जैसे मान लो आपका नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट फ्राइडे से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो ये फ्राइडे आपका 1 वीक प्रायर टू दैट वो एक एसए पेपर लेंगे इस फ्राइडे का, वही समय पे 9 to 12 समथिंग। और फिर सेकेंड डे GS1 GS2 एंड द सेम पैटर्न ऑफ यूपीएससी GS3 GS4 संडे को। तो ये जो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हो जाता है, ये आप ज़रूर करना जब आप मेंस लिख रहे हो, या अगर क्योंकि इससे एक फ़ायदा आपको हो जाता है कि एग्ज़ाम में जो फटीग है वो नहीं आएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है। जैसे GS3 में ज़रूरत है या GS4 में। GS4 में पेपर कंप्लीशन इटसेल्फ इज़ अ बिग टास्क, बहुत बड़ा लेंदी पेपर होता है, और आजकल जैसे केस स्टडीज़ वगैरह आते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा वो केस स्टडी पढ़ने में ही, और फिर उसमें 3-3 ड्राइवर, पता नहीं चल रहा है कौन किसको मारा है, क्या हो रहा है, तो वो समझने में, एनालाइज़ करने में भी वक़्त लग जाता है। तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, आप ये भी करिए। ठीक है, ये हो गया। एक मॉक आप दे सकते हैं वैसे वाला, जो एग्ज़ाम के बिल्कुल पहले होता है, वैसे ही दे दीजिए। नहीं तो क्या होता है, हम आज GS1 का लिख दिए हैं, फिर छोड़ दिए हैं, दूसरे दिन हम GS2 का लिख देंगे। वो ठीक है, वो दैट विल हेल्प यू, बट एक्चुअल में एग्ज़ाम जैसे होने वाला है, वैसे ही आप ट्राई करिए, तो दैट विल हेल्प यू बेटर। और वो फ्री रिसोर्सेस है तो आप यूज़ करिए। Being a doctor, can you please tell me how to manage health issues along with the studies? See, health issues में basically first thing आपको sleep, डाइट एंड लिव स्ट्रेस फ्री, ये 3 चीज़ों करोगे तो हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। क्योंकि हम एक तो स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है हमारी, हम कभी रात को पढ़ रहे हैं, कभी दिन में पढ़ रहे हैं, वो एक थोड़ा इशू आ जाता है। तो आप टाइम टेबल सॉर्ट आउट करके ले लीजिए। इवनिंग में एक समय के बाद चाय कॉफ़ी बंद कर दीजिए, तो नींद भी बराबर से आ जाएगा। मॉर्निंग में ट्राई टू गेट अप अर्ली, और थोड़ा सा एक्सरसाइज कुछ इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, योगा वगैरह करना कर सकते तो कर लीजिए, या तो फिर मेडिटेशन तो इज़ द बेस्ट वे टू रिलीज स्ट्रेस। So I hope whatever I had to share, the things which I could think of, I had shared. If anyone or
anyone think that anything is remaining or anybody wants to share their thinking, they're free to do so in comments. I'll just read. Otherwise, we can wrap up the session. See, I'm writing my Insta handle. I won't say handle. I think it's username. It's Dr. Pawan K Learner. So you can get in contact with me on this. You can message me. If not immediately, I'll definitely reply you, whatever your queries are. So if anyone has any questions or anybody wants to uh, say something, you can say. Otherwise, we can wrap it up. I hope we have covered. Okay, one query is working aspirant. I do not get time to read newspaper. Therefore, ending upon just watching its analysis. Please elaborate. See, watching analysis will be helpful so that you don't miss on certain important themes. बट आप दो एनालिसिस सुन सकते हैं. एक तो मैं सुनता था बाईजूस का और डीएनए फ्रॉम शंकर आईएस, क्योंकि ये दो अलग अलग टॉपिक्स कवर करते थे. ऐसा मैंने आई कुड एनालाइज इट. बट आई वुड से कि आप दो तीन चीज़ें तो पढ़िए. जैसे इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन सेशन है वो आप ज़रूर पढ़िएगा, टाइम निकाल के पढ़िएगा. एंड द हिंदू का डेटा एंड द फैक्ट एफएक्यू वो आप पढ़ लेंगे तो भी बहुत हो जाएगा. एंड आई थिंक मिंट एक्सप्लेन ठीक है, वो नहीं पढ़ोगे तो भी एटलीस्ट ये दो चीज़ें पढ़ लीजिए. मतलब 2 पेजेस है, 2 से 2.5 पेजेस. एटलीस्ट दैट मच इफ़ यू कैन डू इट, इट विल बी वेल एंड गुड. आप भले ही आर्टिकल्स है सेलेक्टिवली आप ये कर सकते हैं, बट ये चीज़ें आप करिए. तो आई थिंक वी कैन रैप इट अप. थैंक यू ऑल. You too, take care. All the best for your preparation. And most important thing I would say is stay away from negative people, stay away from negative things. Negative thoughts नहीं आने चाहिए. सिंसियरली प्रिपेयर करिए, ठीक है. सिंसियरली प्रिपेयर करिए एंड यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर प्रिपरेशन. कि मैं किसी को दिखाने के लिए प्रिपेयर करूँ, इससे अच्छा है कि मैं प्रिपेयर ऐसा करूँ कि आई शुड गेट सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट. अगर ऐसा आप पढ़ते हो तो मेरी लड़ाई मेरे खुद से होनी चाहिए, मेरी कंपटीशन मेरी खुद से होनी चाहिए. इफ़ आई एम डूइंग दिस टुडे, आई शुड बी एबल टू डू बेटर टुमारो एंड much better day after tomorrow. So that is what is going to get me nearer to success. With this, I wrap it this session and all the best for you. If you have any queries, please get in touch with me on this Insta ID. I'll be more than happy to solve your questions, solve your queries as far as best of my knowledge. Thank you very much.